آپ سبھی کو ہمارے اس چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کیا بھارت میں سکھوں کی اپنی ریاست بن سکتی ہے؟ کیا خالصتان حقیقت بن سکتا ہے؟ خالصتان تحریک کب اور کیوں شروع ہوئی؟ بھارتی حکومت کی کون سی غلطیاں اس تحریک کو تقویت دیتی رہیں؟ میرے پریوار کا ایک بھی نہیں بچا، یہ کیونکہ ان کی مہربانی سے آپریشن ہوا ہے۔ 30 سال کی چوٹ ہے یہ میڈم، جو آپریشن ہوا اتنی بڑی ناک ہو گئی تھی، کوئی بھی دیکھتا ڈر جاتا تھا۔ آج ہم ثبوتوں، تاریخ اور مستقبل کے امکانات کا مکمل جائزہ لیں گے۔ ناظرین، خالصتان تحریک کی ایک نمایاں تاریخ ہے۔ 1947 سے پہلے سکھ اپنی علیحدہ ریاست چاہتے تھے کیونکہ وہ ہندو اور مسلم اکثریت سے خدشات رکھتے تھے۔ برطانوی راج نے سکھوں کو فوج میں استعمال کیا لیکن کبھی انہیں سیاسی خود مختاری نہیں دی۔ قیام پاکستان اور بھارت کے وقت پنجاب تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں سکھوں کو علیحدہ وطن نہیں ملا، جس کا ثبوت 1950 سے 1960 کی دہائی کی پنجابی صوبہ تحریک ہے۔ سکھوں نے اپنی پنجابی شناخت کے لیے جدوجہد کی مگر بھارتی حکومت نے مخالفت کی۔ 1966 میں پنجاب کی لسانی بنیادوں پر تقسیم ہوئی مگر ہریانہ اور ہماچل پردیش کو الگ کر کے سکھوں کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا۔ 1973 کی آنند پورہ ساہت قرارداد کے تحت سکھوں نے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کیا مگر بھارتی حکومت نے اسے نظر انداز کیا۔ خالصتان تحریک کا سب سے بڑا موڑ 1985 کا آپریشن بلو سٹار۔ سکھ رہنما جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے نے سکھوں کے حقوق اور خالصتان کا مطالبہ کیا۔ اندرا گاندھی نے فوج کو گولڈن ٹیمپل پر حملے کا حکم دیا۔ ہزاروں سکھ بے گناہ مارے گئے، عورتیں اور بچے بھی قتل ہوئے۔ 2 corpses had to be retrieved from the sacred lake, which must now be drained and refilled. The death toll during the siege was 45, mostly militants. The violence across the Punjab state since the surrender has claimed dozens of lives. برطانوی خفیہ دستاویزات کے مطابق برطانیہ نے بھارت کو اس آپریشن میں مدد فراہم کی تھی۔ 1984 میں اندرا گاندھی کا قتل اور سکھ مخالف فسادات شروع ہو گئے اور اندرا گاندھی اپنے ہی سکھ محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گئیں۔ کانگریس کی حمایت یافتہ ہجوم نے دہلی اور دیگر شہروں میں 3000 سے زائد سکھوں کو قتل کیا۔ ہیومن رائٹس واچ اور دیگر رپورٹس کے مطابق یہ قتل عام ریاست کی مدد سے ہوا اور یہیں سے خالصتانی عسکریت پسندی کا آغاز ہوا۔ وہاں پہ اس وقت پوری پولیس موجود ہے، پولیس کمیشن موجود ہے، پیراملٹری فورس موجود ہے، اور کسی نے پولیس والے نے موب کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی اس کی FIR نہیں رجسٹر ہوئی اور کوئی ایکشن کسی کے اوپر نہیں ہوا۔ 1985 سے 1995 بابر خالصہ اور خالصتان کمانڈو فورس جیسے گروپوں نے بھارت کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ 1985 ایئر انڈیا فلائٹ 182 پر بم دھماکہ ہوا جس میں 329 افراد ہلاک ہوئے اور اس کی ذمہ داری خالصتانی گروپ نے قبول کی۔ 1990 کی دہائی میں بھارتی حکومت نے سخت فوجی کارروائیوں کے ذریعے تحریک کو کچل دیا لیکن انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں۔ خالصتان کی راہ میں بڑے شدید مسائل اور چیلنجز ہیں۔ پنجاب میں خود خالصتان کی کمزور حمایت ہے۔ 2022 کے سروے کے مطابق 98% پنجابی سکھ خالصتان کے حامی نہیں ہیں۔ 2020 کے CSDS کے کسان احتجاج میں سکھوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا مگر خالصتان کا کوئی بڑا مطالبہ سامنے نہیں آیا۔ اس تحریک کو کمزور اور ختم کرنے میں بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کامیاب محسوس ہوتی ہیں۔ بھارتی حکومت نے خالصتانی قیادت کو ختم کر دیا اور مسلسل تحریک پر نظر رکھتی ہیں، جبکہ عالمی سطح پر بھی سفارتی مسائل درپیش ہیں۔ کسی بھی ملک نے خالصتان کو تسلیم نہیں کیا۔ کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں خالصتانی گروہ سرگرم ہیں مگر حکومتیں ان کی حمایت سے گریز کرتی ہیں۔ اقتصادی اور جغرافیائی حقیقتیں بھی اس تحریک کے لیے موضوع نہیں ہیں۔ پنجاب ایک بند علاقہ ہے جسے لینڈ لاکڈ کہا جاتا ہے، اسے بھارت یا پاکستان پر انحصار کرنا پڑے گا۔ خالصتان کی معیشت زیادہ تر زراعت پر منحصر ہے جو کہ ایک خود مختار ملک کے لیے ناکافی ہے۔ خالصتان تحریک کا مستقبل روشن اور پر امید ہو سکتا ہے اگر بین الاقوامی حالات ان کے لیے موزوں ہوں اور ان کے اندرونی اختلافات کم ہو جائیں۔ سکھ فار جسٹس نے 2020 میں ریفرنڈم کے ذریعے خالصتان کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے ان پر پابندی لگا دی مگر کینیڈا اور دیگر ممالک میں ان کے حامی سرگرم ہیں۔ 2023 میں بھارت اور کینیڈا کے درمیان خالصتان کا تنازع کھڑا ہو گیا جب ہردیپ سنگھ نجر جو کہ خالصتانی رہنما ہیں ان کو کینیڈا میں قتل کیا گیا، جس پر جسٹن ٹروڈو نے بھارت پر الزام لگایا۔ Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. بھارت نے الزامات مسترد کیے اور سفارتی تعلقات کشیدہ ہو گئے۔
सिख कौम परस्ती और ऑनलाइन सरगर्मियां जारी हैं। सोशल मीडिया पर भी खालिस्तान के हामी गिरोह सरगर्म हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रा खालिस्तान से मुतालिक ऑनलाइन सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। खालिस्तान बनने की सूरत में अगर पाकिस्तान के लिए मुमकिना फवाइद का जायजा लें तो हम समझते हैं कि पंजाब भारत की फौजी और इक्तसादी कमजोरी है। अगर पंजाब भारत से अलग हो जाता है तो भारत अपनी सबसे बड़ी ज़राई ज़मीन और फौजी भर्ती के अहम मरकज़ को खो देगा। एक कमज़ोर भारत पाकिस्तान को मौका देगा कि वो अपनी फौजी तवज्जो अंदरूनी तरक्की पर मरकूज़ करे। अगर खालिस्तान वजूद में आता है तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान बफर जोन बन जाएगा, जिससे बराह रास्त सरहदी तनाज़ात कम हो सकते हैं। भारत को एक नई मगरबी सरहदी रियासत से निमटना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान को कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात पर फ़ायदा मिल सकता है। चीन की तिब्बत पॉलिसी। जब चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो इसने भारत के साथ बराह रास्त तनाज़ात कम कर दिए। इसी तरह खालिस्तान भारत के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। खालिस्तान ज़मीनी एतबार से एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, जिसे अपनी मईशत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। पाकिस्तान को खालिस्तानी बरामदात और सरमायाकारी में बढ़तरी हासिल हो सकती है। अफगानिस्तान की मईशत का इन्हिसार कराची बंदरगाह पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इक्तसादी मुज़ाकरात में बढ़तरी हासिल होती है। लेकिन खालिस्तान की तहरीक में पाकिस्तान के लिए मुमकिना खतरात क्या हैं? भारत इल्ज़ाम लगा सकता है कि पाकिस्तान खालिस्तान की मदद कर रहा है और इसके जवाब में बलोच बागियों को माली और फौजी मदद फ्राहम करता है। भारत पश्तून कौम परस्त तहरीकों को भी हवा दे सकता है कि पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल में उलझाए। कुलभूषण यादव केस। रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान में पकड़ा, जो मुबैना तौर पर बलोच बागियों को फंडिंग और तरबियत दे रहा था। पाकिस्तानी ISPR की रिपोर्ट्स में बारहा इंकिशाफ किया गया कि भारत बलोच अलहदगी पसंदों को फंडिंग दे रहा है और खालिस्तान की हिमायत से ये सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। खालिस्तान की खारजा पॉलिसी दोस्त है या दुश्मन? अगर खालिस्तान बन भी गया तो ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान का इत्तेहादी बने। सिख क़यादत भारत और पाकिस्तान दोनों से आज़ादी की कोशिश कर सकती है। सिख सल्तनत महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर, पेशावर और कश्मीर पर हुकूमत कर चुकी है। कुछ खालिस्तानी गिरोह इन इलाकों पर अपने तारीखी दावे कर सकते हैं। कुछ खालिस्तानी गिरोह मुतालबा करते हैं कि ननकाना साहब, जो कि पाकिस्तान में वाक़ सिखों का मुक़द्दस मुकाम है, उसको खालिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, जो पाकिस्तान के लिए एक नया सरहदी मसला खड़ा कर सकता है। द पंजाब ब्लडेड पार्टीशंस एंड क्लींस्ड अज इश्तियाक अहमद में तफसील से बयान किया गया है कि सिख मुस्लिम ताल्लुकात की तारीख किस तरह मुस्तकबिल में पाकिस्तान और खालिस्तान ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। आलमी सफारती दबाव और इक्तसादी पाबंदियां। अगर पाकिस्तान खुलकर खालिस्तान की हिमायत करता है तो इसे अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है और खालिस्तान की मदद करने पर आलमी दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कनाडा का खालिस्तानी इंतहा पसंदों से रवैया कैसा है। कनाडा में खालिस्तान के हामी आज़ाद हैं, लेकिन हुकूमत भारत की खुद मुख्तारी को तस्लीम करती है और खुलकर हिमायत नहीं करती, ताकि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़राब ना हों। क्या पाकिस्तान को खालिस्तान की हिमायत करनी चाहिए? पाकिस्तान को खालिस्तान की हिमायत में मोहतात हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान को चाहिए कि सिखों के मसाइल को आलमी सतह पर उजागर करे, जैसे 1984 का सिख कत्लेआम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ। सिख पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत करे, जैसे करतारपुर राहदारी जैसे मंसूबे। बराह रास्त अस्करी हमायत से गुरेज करे ताकि भारत जवाबी कार्रवाई ना करे। अगर खालिस्तान भारत का इत्तेहादी बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर पाकिस्तान खालिस्तानी अस्करियत पसंदी की हिमायत में पकड़ा गया तो आलमी बरादरी शदीद रद्द-ए-अमल दे सकती है। बिलाखिर खालिस्तान का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि भारत सिखों के साथ कैसा रवैया अपनाता है। अगर भारत सिखों के हकूक दबाने की पॉलिसी जारी रखता है तो खालिस्तान तहरीक दोबारा जोर पकड़ सकती है। पाकिस्तान पर मुख्तलिफ औकात में खालिस्तान तहरीक की माली, फौजी और सियासी मदद के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। खासतौर पर 1980 की दहाई में जब भारतीय पंजाब में अलहदगी पसंद तहरीक अरूज पर थी, भारत और कई आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने खालिस्तानी अस्करियत पसंदों को पनाह, हथियार और आलमी इमदाद फराहम की। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की।
1980 और 1990 की दहाई में भारतीय और मगरबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने खालिस्तानी जंगजुओं को ट्रेनिंग कैंपों में अस्करी तरबियत फराहम की। भारतीय मीडिया के मुताबिक खालिस्तानी जंगजू पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग हासिल करते थे और भारतीय पंजाब में हमले करते थे। 1988 में भारतीय फौज ने खालिस्तानी जंगजुओं के कई अड्डों पर छापे मारे, जिनमें मुबैना तौर पर पाकिस्तानी असलाह बरामद हुआ। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी जंगजू अफगान जहाद में इस्तेमाल होने वाले AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर असले से लैस थे, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान के जरिए आया था। भारतीय पंजाब के साबिक पुलिस चीफ KPS गिल ने अपनी किताब द एनिमीज विद इन पंजाब में लिखा कि ISI ने खालिस्तान तहरीक को असला, धमाका खेज मवाद और खुफिया मालूमात फराहम की। पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम भी है कि उसने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बबर खालसा इंटरनेशनल और दीगर ग्रुपों को माली सपोर्ट फ्राहम की। पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क्स के जरिए बैरून मुल्क मुकीम सिखों की इमदाद को जंगजुओं तक पहुंचाया जाता। 1993 में भारत में गिरफ्तार खालिस्तानी जंगजुओं ने मुबैना तौर पर यह एतराफ़ किया कि उन्हें पाकिस्तान में तरबियत दी गई थी और वहां से माली मदद मिलती थी। कनाडा में 1985 का एयर इंडिया बम धमाका, जिसमें खालिस्तानी गिरोहों ने हमला किया और इसमें शामिल दहशतगर्दों के पाकिस्तान में राब्ते के शवाहिद मिले। भारतीय हुकूमत के मुताबिक ISI के साबिक एजेंट अब्दुल हामिद ने 1992 में तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने खालिस्तान तहरीक की मदद की थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि सिखों के लिए सिफारती हिमायत क्या है। पाकिस्तान ने हमेशा सिखों के मजहबी मकामात को एक सिफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि भारत पर दबाव बढ़ाया जा सके। करतारपुर राहदारी 2019 के क़याम को भारत में पाकिस्तान की खालिस्तान नवाज पॉलिसी के तौर पर देखा गया। 1984 में सिखों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत के खिलाफ मुहिम चलाई। 1990 की दिहाई में पाकिस्तान के सरकारी TV और अखबारात में खालिस्तान के हक में मज़ामीन और बयानात दिए जाते रहे। 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान आमद और उनके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर भारत में तनाज़ा पैदा हुआ और सिद्धू पर खालिस्तान की हिमायत का इल्जाम लगा। नाज़रीन, क्या खालिस्तानी रहनुमा पाकिस्तान में मुकीम रहे? भारत ने कई बार दावा किया कि खालिस्तानी तहरीक के कुछ बड़े रहनुमा पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। गुरप्रीतवंत सिंह पुन्नू और दीगर रहनुमाओं पर पाकिस्तानी एजेंसियों से रवाबित के इल्जामात हैं। परमिंदर सिंह पन्नू, जो बबर खालसा इंटरनेशनल का लीडर था, मुबैना तौर पर कई साल पाकिस्तान में रहा। भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तान तहरीक के जंगजू वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आते जाते रहे। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान वाकई खालिस्तान की मदद कर रहा है? इसके लिए कुछ हकाइक पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर सिखों के मसाइल उजागर किए हैं, भारत के खिलाफ खालिस्तानी तहरीक के लिए नरमी का मुजाहरा किया है और करतारपुर राहदारी जैसी पॉलिसियों से सिखों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान पर इल्जामात क्या हैं। भारत का इल्जाम है कि पाकिस्तान ने खालिस्तान जंगजुओं को फौजी तरबियत, असला और माली मदद फराहम की। पाकिस्तान में कई खालिस्तानी रहनुमा मुबैना तौर पर पनाह लिए हुए हैं और पाकिस्तान ने हमेशा इन इल्जामात को मुस्तरद ही किया और कहा कि खालिस्तान भारत का अंदरूनी मामला है। अलबत्ता तारीखी तौर पर पाकिस्तान और खालिस्तान तहरीक के दरमियान ताल्लुकात की कहानियां हमेशा गर्दिश में रही हैं। किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म पर इसे सपोर्ट नहीं किया। जैसे ही फ़ायदा ख़त्म हुआ, खालिस्तान तहरीक को तन्हा छोड़ दिया। ये सब जाहिर करता है कि खालिस्तान तहरीक पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल टूल थी, जिसे इस्तेमाल करके बाद में छोड़ दिया गया। अगर खालिस्तान के हामियों को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान इनका हकीकी इत्तेहादी होगा, तो तारीख ने साबित किया कि ऐसा नहीं था। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई खालिस्तान के साथ मुखलिस था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नाज़रीन, भारत ने खालिस्तान तहरीक को कैसे ख़त्म किया? क्या खालिस्तान वाकई मुमकिन था या भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने इसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया? आज हम देखेंगे कि कैसे भारत ने 1980 और 1990 की दिहाई में खालिस्तान तहरीक को बेरहमी से ख़त्म किया, कौन सी खुफिया पॉलिसीज़ अपनाई और किस तरह सिख अलहदगी पसंदों को कुचला गया। 1984 में होने वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार तहरीक को ख़त्म करने की पहली कोशिश थी। जून 1984 में भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर हमला किया, जहां खालिस्तानी अलहदगी पसंद जर्नैल सिंह भंडरावाले और उनके जंगजू मौजूद थे। फौज ने भारी असले और टैंकों से हमला किया, जिसमें हज़ारों सिख हलाक हुए, मुकद्दस मकाम को नुकसान पहुंचा और खालिस्तान की तहरीक को ज़बरदस्त धचका लगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर आम शहरियों को भी अपना निशाना बनाया ताकि सिख बरादरी में खौफ पैदा किया जा सके। इंदिरा गांधी का कत्ल और सिख मुखालिफ फसादात।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के चंद माह बाद 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स अनंत सिंह और सितवंत सिंह ने कत्ल कर दिया। इसके बाद पूरे भारत में सिख मुखालिफ फसादात भड़क उठे, जिनमें 3000 से जायद सिखों को दिल्ली, पंजाब और दीगर शहरों में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 2002 में कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ और सज्जन कुमार पर फसादात भड़काने का इल्जाम लगा, मगर कोई सख्त सजा नहीं दी गई। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और दीगर गिरोहों के खिलाफ सख्त फौजी ऑपरेशंस हुए। 1985 के बाद भारतीय हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट मुतारिफ करवाया, जिसके तहत सिख जंगजुओं को निशाना बनाया गया। 1986 से 1995 भारतीय फौज और पंजाब पुलिस ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस किए। 1992 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने मशहूर खालिस्तानी रहनुमा गुरचरण सिंह मंदू और सिख मिलिट्री कमांडर्स को कत्ल कर दिया। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक हजारों बेगुनाह सिख नौजवानों को गायब किया गया और पुलिस ने बगैर ट्रायल उन्हें कत्ल कर दिया। खालिस्तान तहरीक को अंदर से कमजोर करना, पुलिस मुकाबले और मुखबरी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सिख मज़ाहमती तहरीक में पुलिस के मुखबिर दाखिल किए, जिससे अंदरूनी तकसीम पैदा हुई। 1990 की दिहाई में कई खालिस्तानी कमांडर्स को उन्हीं के करीबी साथियों ने पैसे और मुआफी के बदले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। 1993 में पंजाब पुलिस चीफ KPS गिल ने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने हजारों सिखों को खुफिया मुकाबलों में कत्ल कराया ताकि तहरीक को जड़ से खत्म किया जा सके। भारत ने आलमी सतह पर खालिस्तानी रहनुमाओं को कुचलने के लिए सिफारती और खुफिया ऑपरेशंस किए। 1990 के बाद भारतीय एजेंसीज ने कई बैरूने मुल्क खालिस्तानी लीडर्स को गिरफ्तार कराने या कत्ल कराने में अहम किरदार अदा किया। परमार सिंह कनाडा में सरगर्म खालिस्तानी लीडर को 1992 में कत्ल किया गया। प्रेम सिंह बग्गा बरतानिया में खालिस्तान का हामी 1995 में गिरफ्तार कर लिया गया। कई खालिस्तानी कारकुनों को अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भारत के दबाव पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान से ताल्लुकात को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना। भारत ने खालिस्तानियों को पाकिस्तान के एजेंट साबित करने की कोशिश की ताकि बैनुल-अक़वामी हिमायत कम हो जाए। 2017 में भारतीय मीडिया ने गोपाल सिंह चावला के पाकिस्तान में होने वाली मुलाकातों को खालिस्तानी दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं था। खालिस्तान के हामियों को बैरूने मुल्क महदूद करना। 2020 के बाद भारत ने कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में खालिस्तान तहरीक को महदूद करने के लिए सिफारती दबाव बढ़ाया। 2023 में भारतीय हुकूमत ने कनाडा पर दबाव डाला कि वो खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार के खिलाफ कार्रवाई करे और जल्द ही वो कनाडा में कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्जाम भारत पर लगाया गया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 2023 में भारत पर इल्जाम लगाया कि वो गैर कानूनी कत्लो गारत में मुलव्विस है। भारत ने खालिस्तान तहरीक को कैसे ख़त्म किया? बेरहमाना फौजी ऑपरेशंस, सिख मुखालिफ फसादात और हज़ारों बेगुनाह अफराद का कत्ल, तहरीक में अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करना और मुखबिर दाखिल करना, बैनुल-अक़वामी सतह पर खालिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना। क्या खालिस्तान का दोबारा उभरना मुमकिन है? आज भी कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में खालिस्तान के हामी सरगर्म है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत और आलमी सिफारती असर रसूख से तहरीक को बहुत हद तक महदूद कर दिया है। अगर खालिस्तान तहरीक को दोबारा मजबूत होना है तो इसे दाखिली तकसीम ख़त्म करना होगी और एक आलमी हिकमत अमली अपनाना होगी। आपकी राय क्या है? क्या भारत ने खालिस्तान तहरीक के साथ इंसाफ किया? क्या मुस्तकबिल में खालिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन सकता है? क्या खालिस्तान कभी हकीकत बन सकेगा? आपके ख्याल में पाकिस्तान को खालिस्तान की हिमायत करनी चाहिए या गैर जानिबदार रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद हकाइक पर मबनी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।